So it's more or less automated. I just need to go there and keep an eye. अब ना पता ये वही वाला सीन हो रहा है जो दीपक के साथ हुआ था, हंसते रहेंगे। वो बिजनेस मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि उसमें टिकट साइज बहुत कम था। We all know how fast Mumbai moves, and in a city where everyone's always rushing to reach somewhere faster, both you and your car go through a lot. Traffic, heat, pollution and whatnot. But when it comes to your car, we make sure that it gets the best care possible. So today we are at Car Spa Navi Mumbai to give you a glimpse into the daily life of our franchisee partner Yash Gupta. How he spends his entire day taking care of each and every car that walks into his studio. But we won't be starting here. Let's go to his house and see how his day actually starts. Hi Yash, how are you? Hi Ollie. Hi baby. कैमरा शाइनी वो नई आधुनिक चीज है ना, उसको नई टेक्नोलॉजी से बहुत डर लगता है। तेरे को नीचे से चल बाय बाय बाय। जैसे जर्मन शेफर्ड होता है कि बाइट करना है, ये डरता है। इसका पहला रिस्पॉन्स ये है कि मेरे को भागना है, डरता है नहीं लोगों। So Yash, walk me through your day, like your everyday schedule. From the moment you wake up till time you leave the studio. What does a typical day look like for you? Okay, every day is different, but mainly schedule wise, सुबह सुबह उठता हूँ, I do my basic routine work, फ्रेश हो जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, then मेरा पपी है ओली, आप मिले उससे, उसके साथ आई स्पेंड एटलीस्ट 1.5 आवर प्लेइंग। उसकी ट्रेनिंग है 30 मिनट्स, उसकी ट्रेनिंग को देता हूँ एंड देन फिर आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड आई लीव माई होम एंड देन ऑन द वे जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं जिनकी गाड़ी आज आने वाली है, Right. उनके साथ एक फॉलो अप ले लेता हूँ कि व्हाट टाइम दे विल बी ड्रॉपिंग द कार, अकॉर्डिंगली अपने स्टाफ को अलाइन कर देता हूँ। Or according to you, what are your top 2 or 3 factors you would like to say that makes sure कि आपके customer fully satisfied हो या फिर whenever they leave they are well satisfied with your work? 3 things. First is the installation quality. I'm proud to say नवी मुंबई में हमसे अच्छा PPF कोई नहीं लगा सकता। In fact, I think मुंबई में भी we are among the top people in terms of installation quality. There are no visible seams, cuts, lines. We make sure कि कोई पैनल में अगर कोई दिक्कत आ भी रही है, we replace that right away before delivery. ऐसा नहीं कि क्लाइंट को दिखे उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर उसको पहले गलती दिख रही है एंड देन आई फिक्स इट, बट मेरा इंप्रेशन ऑलरेडी उनके पास सामने खराब हो चुका है, तो दैट इज़ वन थिंग। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वी फिक्स इट बिफोर द डिलीवरी इटसेल्फ। सेकेंडली, आफ्टर सेल सर्विस में हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं क्लाइंट्स को। सो पैच वर्क्स वी डू फ्री ऑफ कॉस्ट, पिकअप एंड ड्रॉप्स कोई भी चीज़ से रिलेटेड है वी डू फ्री ऑफ कॉस्ट। So clients are also very happy and keen to keep coming back to us. 90% of the business that I do in washing and detailing or interior cleaning is a repeat client from either ceramic or PPF. Other than that, the third thing is delivery process. Delivery process में भी make sure कि client को गाड़ी अच्छे से check करने के लिए मिल रही है, उसको एक hurried way में हम deliver नहीं कर रहे हैं गाड़ी, पर he gets his time। अगर उस पर भी कुछ दिख रहा है वो immediately resolve हो जाता है। Those 3 things ensure कि I have a very high satisfaction ratio with clients. Complaints है ही नहीं, in fact PPF की तो there has never been any major complaint कि ये problem आ गई है। तो यश आप दोनों स्टूडियो साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करते हैं? राइट नाउ एज इन सुबह से अर्ली मॉर्निंग यू आर प्लान टू गो टू योर फर्स्ट स्टूडियो, राइट? Right. So how do you manage the second studio My simultaneously? second studio only deals with operations, so it's more or less automated. I just need to go there and keep an eye कि क्या क्या हो रहा है। बाकी I do it with CCTV कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हर एक एंगल उसमें कवर्ड है। आई सी कि स्टाफ थोड़ा टाइम पास कर रहा है तो मैं कॉल भी कर देता हूँ, फिर फटक से सब काम पे लग जाते हैं, तो हो जाता है मैनेज। ऑन ग्राउंड मैनेजर है वहाँ पे? सुपरवाइजर्स हैं पीपीएफ एंड डिटेलर्स के लिए, Okay. जो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हैं स्टाफ, उन्हीं को मैंने सुपरवाइजरी रोल दे रखा है वहाँ पे। तो दे इंश्योर, क्योंकि
कुछ भी डिले हो रहा है तो गाली उन्हीं को पड़ती है, तो दे नो कि क्या करना है और कौन से टाइम पे कौन सी गाड़ी रेडी करके डिलीवर करनी है। टिल नाउ व्हाट इज दैट वन ड्रीम कार दैट यू हैव वर्कड ऑन, एंड कौन सी कार है जो आपको पर्सनली बहुत ऐसे एक्साइट करती है व्हेनेवर दैट कार विजिट्स योर स्टूडियो फॉर डिटेलिंग और Porsche पीपीएफ? 911 इट्स माय फेवरेट कार। और There was this client जिन्होंने कलर्ड पीपीएफ के लिए ड्रॉप करी थी एंड आई वाज सो लकी, उन्होंने मेरे को मॉर्निंग में बुलाया, बोला कि तू घर से कार पिकअप कर ले, एंड आई वाज नेवर गोइंग टू सेंड अ ड्राइवर। मैं खुद गया, मैंने उनके घर से गाड़ी उठाई एंड मेरे को मिले उसमें 20 मिनट्स, बट दोज 20 मिनट्स वर हेवन। वो गाड़ी इतनी अच्छी है, स्पेसिफिकली इंडियन रोड्स के लिए। देयर वर नो हिकअप्स, मेरे को बम्प्स का बहुत डर लग रहा था, स्पीड ब्रेकर्स का डर लग रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्लस द एक्सेलरेशन, जब मेरे को थोड़ा सा ओपन स्पेस मिला, the best car that has been ever made. So that is my dream car. I am here since today and we'll be spending tomorrow as well. मैंने नोटिस किया कि यहाँ के रोड पे काफी सारी कार्स है एंड जितनी स्टूडियो पे आती है पूरे मुंबई का भी अगर हम सोचे तो हार्डली 2 or 3% लोग जितनी पीपीएफ होती है। तो व्हाट डू यू थिंक ये बिजनेस में आगे स्कोप है? Definitely scope है and scope will keep on increasing because इंडिया का कंज्यूमर अभी स्पेंड करने के लिए भूखा है। He is willing to spend more and more money. अभी आप सामने देख लो, there's a Porsche going, there's a BMW X7 going on the road. Right. Oh, that's not a Porsche. हाँ, Porsche ही है। Customers, clients खर्चा कर रहे हैं and when they are buying cars like these, they are bound to get them protected. जैसे कि अभी हम ब्रांड की बात कर रहे थे, सो वॉक मी थ्रू कि आप पहले क्या करते थे बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, एंड व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट कार डिटेलिंग स्पेसिफिकली, एंड व्हाई गो फ्रेंचाइजी बेस्ड एंड नॉट सोलो? Right. So इससे पहले I used to do retail business, shoes and clothing में, branded clothing. So excess inventory होती है brands की, वो liquidate होती थी and हमें काफ़ी कम rates में मिल जाती थी and हम भी in turn clients को discount में offer कर देते थे। वो business मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि उसमें ticket size बहुत कम था and I did not wish to keep on doing it for my entire life. I had a passion for cars, मेरे को cars related कुछ करना था and this is something that caught my eye in 2021 and उसके बाद से I kept on researching and फिर finally जब planning बैठी and timing बैठी तो फिर I decided to move forward. Why Carspa and not go solo? Because I always know the importance of brand. I have been dealing in branded goods. वहीं पे अगर मैं कोई normal shoes बेच रहा था तो शायद कोई आता भी नहीं दुकान पे, but क्योंकि I was selling good brands, लोग आते थे भाग भाग के दूर से। So I knew the importance of carrying a good brand. Again, when you are starting out as a fresher, आपका खुद का brand आप start कर रहे हो, there's a lot of unknowns that you have, there's a lot of ifs and buts, there's a lot of chance of failure. But when you're going with a brand, they train you अच्छे से, वो आपको बताते हैं क्या चीज़ धंधे में चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, and आपके पास एक हेड स्टार्ट होता है, you can hit the ground running and you know what all things to do. एक बहुत अच्छी SOP हमें प्रोवाइड करी गई थी थैंक्स टू अंकुर सर्स ट्रेनिंग। तो वी न्यू जब गाड़ी हमारे सामने आती है तो हमें कैसे डायग्नोस करके उसको फिक्स करना है। So Heer, welcome to my studio. Thank you so much Yash. आ जाओ। This is the biggest studio in Navi Mumbai. Yes, आपका ऑफिस ऊपर है। ऑफिस ऊपर है, ऑफिस कम्प्लीटली एक सेपरेट स्पेस रखा है बिकॉज क्लाइंट्स को डिसीजन लेने में आराम से टाइम मिले, नॉइज ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो। एंड ऑन ग्राउंड यहाँ पे कितना स्टाफ है ये स्टूडियो पे? ये वाले स्टूडियो पे 4 लोग हैं। ये हमारे साथ क्रिकेट खेलने आएगा आज शाम को, राजा हमारा चबी बॉय है। ये मेरा शेर है, ही इज़ हियर फ्रॉम बिफोर डे 0। तो बेसिकली जब स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उससे पहले से मेरे साथ है ये। इसको मैं खारगढ़ से उठा के लाया था जहाँ पे मैं मेरी कार वॉश कराता था। पहले से वॉशिंग जानता था, थोड़ा बहुत पॉलिशिंग जानता था, ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती थी। अब मैनुअल गाड़ी हो, ऑटोमेटिक हो, सब चला लेता है। ही जस्ट बिकेम अ फादर रिसेंटली। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। फैमिली भी बढ़ रही है भाई की, भाई आगे भी प्रोग्रेस कर रहा है। सो ही इज़ आवर वॉशिंग के लिए बंदा, अभी सीख रहा है पॉलिशिंग, धीरे धीरे सीखेगा। मेनली वॉशिंग का काम है। स्टोर की क्लीनलीनेस ये रखता है पूरा, आप स्टोर देखो कभी भी आओ फ्लोर एकदम साफ रहेगा। एंड वेरी गुड गाय, गुड लुकिंग ऑल्सो। So Yash, what are we going to do today? कौन सी कार्स किस चीज़ के लिए आई है? सो दिस इज योर फॉर PPF मेंटेनेंस, हो गया इसका काम। दिस इज गोइंग टू बी रेडी फॉर डिलीवरी एंड दिस इज योर फॉर ग्राफीन कोटिंग। दिन में 2-3 वॉशिंग के अपॉइंटमेंट्स हैं, दैट्स अबाउट इट। कल से और लोड है सिरामिक एंड ग्राफीन का। बाकी PPF के लिए दूसरे स्टोर पे काम चल रहा है। 7XO जस्ट मैंने जैसे बताया शाम को आई है, उस पर लगे हुए हैं। विक्टोरिया एक आई हुई है, उस पर भी स्टार्ट करेंगे। On the other studio? Yes. Yeah. And do you have any customer deliveries today or tomorrow? Not planned for today. Tomorrow definitely एक गाड़ी रहेगी। आपका ऑफिस देखे? आइए। Let's go. बताओ।
So यश, क्या प्लान्स है अब आज के दिन के आपके? अभी थोड़ी बहुत लीड्स आई हुई हैं, स्टाफ ने भेजी हुई हैं, उनको कॉल करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। So यश, अभी क्या प्लान्स है, अब हम क्या करेंगे? अभी अपने दूसरे स्टूडियो पे चलते हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है। Let's So this is here for a wash. Okay. This is also here for PPF maintenance. ये जो है ये क्लासिक केस है कि क्यों ब्रांड न्यू गाड़ी पे आपको PPF करा लेना चाहिए। और ये जो यहाँ पे PPF के लिए वो यही हो जाएगा कि you will be taking This this is car a- to the second This studio? is a PPF maintenance thing. Okay, तो ये ठीक है, यहीं पे हो maintenance, जाएगा। okay, got it. And इस पे भी हमने 1.5 years पहले किया था PPF। I see. अब दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। तो ये 2 months से मेरे टच में है। Okay. इनको PPF करवाना था बट डिले कर रहे थे एंड नाउ दैट ही हैज सम डैमेज, अब इन्होंने रीपेंट के लिए प्लस PPF के लिए ड्रॉप किया। So यश, ऑन एन एवरेज देखें हम तो आप मंथली कितनी कार्स हैंडल करते होंगे और उसमें से कितनी सिरामिक या PPF के लिए ज्यादा ऑप्ट करती है? PPF एंड सिरामिक कंबाइंड अराउंड 50-60 हो जाता होगा मंथली? मंथली। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड इफ वी सी वॉश सब मिला के देखें तो सब मिला के 150 to 200 कार्स। सो यश, आपने जब से कार्स पर स्टार्ट किया है तो आपका ग्रोथ जर्नी कैसा रहा है? यू हैव आल्सो स्टार्टेड अ न्यू स्टूडियो। ये स्टूडियो भी इतना ज़्यादा बूम में चल रहा है, इतने सारे कार्स होते हैं यहाँ दोनों स्टूडियोज पे। तो हाउ इज इट बिन? ग्रोथ जर्नी डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो विद इन द कार्सपा नेटवर्क जो हमें कॉन्स्टेंटली इंस्पायर करते हैं कि वी कैन पुश आवर लिमिट्स। उसी कारण विद इन अ ईयर ऑफ ओपनिंग माय फर्स्ट स्टूडियो हमने सेकंड स्टूडियो में भी एक्सपांड किया, बिकॉज इन दिस बिजनेस स्काई इज द लिमिट। आप कितना भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा आपकी स्पेस है उतना ज़्यादा आप बिजनेस केटर कर सकते हो। और आपने नेटवर्क की बात करी तो हमारा क्लब कार्सपा नेटवर्क है। राइट। हाउ डू यू थिंक दैट हैज हेल्प्ड यू ग्रो? बिकॉज आई डोंट थिंक सो दूसरे ब्रांड्स भी देते हैं, ऐसा कोई नेटवर्क कम्युनिटी होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ। डजंट मैटर बिकॉज इतना एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। एंड वन थिंग अबाउट क्लब कार्सपा इज एवरी सिंगल ओनर वांट्स टू गिव द बेस्ट क्वालिटी सर्विस टू हिज क्लाइंट। सो यश, व्हाट काइंड ऑफ कार ओनर्स यूजुअली विजिट टू योर स्टूडियो? एंथुसियास्ट होते हैं, लग्जरी कार ओनर्स होते हैं, डेली ड्राइवर्स, कैसा क्राउड आता है ज़्यादा? बेसिकली जिसको भी अपनी गाड़ी से प्यार है, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग टू गेट योर कार डिटेल्ड इन अ वेरी गुड प्लेस, राइट। बिकॉज कार्सपा इज ऑब्वियसली अ वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू गेट योर कार डिटेल्ड। तो आप सोच भी रहे हो, मतलब आपको आपकी गाड़ी से प्यार है। अगर आप उसको प्रोटेक्ट करने का सोच रहे हो विद PPF और सेरामिक कोटिंग और वॉट एवर, तो आपको आपकी गाड़ी से प्यार है इसलिए आप करने का सोच रहे हो। तो whoever loves their cars, they come to us and in turn हमें उनकी गाड़ी से प्यार हो जाता है। मंथली बेसिस पे देखें तो लग्जरी कार्स कितनी आती होंगी आपके स्टूडियो पे? See, if we are doing 30 PPFs, it would be around 10 to 12 luxury cars. Rest are our mass market cars. सो व्हाट डू यू थिंक, लोकेशन कितना मैटर करता है ये बिजनेस में पर्टिकुलरली? It does matter a lot because initial stages में जब आपको कोई जानता नहीं है, जब आपके पास कंटेंट नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, बट आपके पास अच्छी लोकेशन है, आपके पास अच्छी सेल्स टीम है, तो आप जल्दी से पिकअप कर पाओगे। यू विल गेट मोर कार्स पे आप कंटेंट बना पाओगे एंड देन यू विल बी एबल टू पुट योरसेल्फ आउट देयर इन द मार्केट, बिकॉज फॉर मार्केटिंग ऑल्सो वी नीड कंटेंट। राइट। अब इनिशियली अगर मैं एक सेक्लूडेड स्पेस में डाल दूँ जहाँ पे देयर इज़ नो वॉक इन, आई वोंट हैव कंटेंट टू फिल्म, आई वोंट हैव कंटेंट टू डू मार्केटिंग ऑन। सो इनिशियली वो लोकेशन का एडवांटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जर्नी का आपको मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट कौन सा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? रनिंग दिस बिजनेस बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक तो मनी ऑब्वियसली, सेकंड इज द लव एंड रिस्पेक्ट आई वांट फ्रॉम माय क्लाइंट्स। आप हमारे गूगल रिव्यूज देखोगे या जो भी है, इन जनरल जब क्लाइंट 1 साल 2 साल बाद भी आता है तो उसके मुंह पे वो स्माइल होती है कि यार यश मेरे को गाड़ी दे पास देनी है, वापस से कुछ काम, एंड दे ऑल प्रेज जो भी काम हुआ है उसके बारे में। तो जो भी रिस्पेक्ट हमने कमाई है, जब क्लाइंट 10 लोगों को रेफर करते हैं कि यार मैंने काम यहाँ से करवाया, आप भी यहीं से करवाओ, वो चीज़ मेरी खरी कमाई है। तो ऑल्सो माई टीम, बिकॉज आई हैव मेड श्योर कि दे आर ऑल्सो क्वालिटी ओरिएंटेड लाइक मी। काम चलाने के लिए काम नहीं करना है कि आज का दिन का काम खत्म कर दिया एंड घर चले गए। वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन। राइट। क्लाइंट जब आता है तो ही मतलब फिर भी छोटा मोटा तो ढूंढते हैं, बट कुछ बड़ा ना मिले। ऐसे कोई मेजर स्ट्रगल्स थे या फिर चैलेंजेस जो आपने आपके अर्ली स्टेज में फेस किए थे, विच नाउ यू रिमेंबर, आपको याद आते हैं तो यू फील प्राउड या फिर यू फील ओवरवेल्म्ड कि हाँ मैंने ये ओवरकम कर लिए है? इनिशियली मेरे पास स्टाफ बहुत कम था। वो तो प्रॉब्लम एवरलास्टिंग है इस बिजनेस में। जितना आपका धंधा बढ़ेगा
उतना आपको ह्यूमन रिसोर्स लगेगा और वो हमेशा कम ही फील होगा। राइट। तो वो तो अभी भी है, बट इनिशियली तो इट वाज कि आई हैड वेरी लेस स्टाफ एंड उसमें से काफ़ी लोग इनकॉम्पिटेंट भी थे। एंड नाउ व्हेन आई लुक एट माय स्टाफ एंड उनकी स्किल्स, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन नवी मुंबई और इवन मुंबई टू कंसिडर दैट। मेरे स्टाफ के पास जो एक्सपीरियंस है, जिस वे में हम गाड़ियों को ट्रीट करते हैं, आई थिंक इट्स सेकंड टू नन। कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। Where are we now, Yash? सेकंड स्टोर गोइंग मैं बात कर रहा हूँ ना। ना ऊपर ले लो। So यश, वाओ, पहली बार मैं आई हुई है आपके स्टूडियो पे। हाँ जी। तो रिसेंटली आपने खोला ही है। Yes. कितना टाइम हो गया? 4 months। 4 months। सो मेरे को जरा बताना कहाँ कैसे है और क्यों खोला आपने, बेसिकली व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? We do around 2 or 3 PPF. Sometimes there are 5 cars for PPF together. तो per पुराने day? स्टोर में हाँ हाँ। per day। तो पुराने स्टोर में ऐसा हो गया था that instead of a detailing studio we had become a PPF studio। सिर्फ PPF ही करते थे पूरा महीना और कोई काम नहीं कर पाते थे। क्लाइंट्स आते थे वॉश के लिए, डिटेलिंग के लिए, तो हम अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते थे। स्पेस कॉम्पैक्ट लगती थी थोड़ी। स्पेस कॉम्पैक्ट था, प्लस अगेन ये काम इतना बढ़ गया बट बाकी काम बढ़ नहीं रहा था, सिरामिक नहीं बढ़ रहा था। इसलिए हमने ये सेपरेट कर दिया कि अब पीपीएफ के लिए अलग जगह है एंड वहाँ पे अब हम डिटेलिंग एंड सिरामिक पे ज़्यादा फोकस कर पाए। ओके, आई सी लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसे, यू नो, Yes. इट्स वेरी नाइस, आई तो कैचिंग। वी हैव अ डेडिकेटेड शूटिंग स्पेस। ये 600 स्क्वायर फीट का प्रॉपर शूटिंग एरिया है। यहाँ पे जो काम कंप्लीट हो जाता है हम शूटिंग करते हैं। प्लस जो न्यू गाड़ी आती है या क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। दिस इज़ आवर वॉशिंग एरिया। यहाँ पे हम डिटेलिंग करते हैं, वॉश करते हैं, कार को पीपीएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड देन दिस इज़ कम्प्लीटली आवर पीपीएफ स्पेस। एसी कंट्रोल्ड है, वहाँ पे आपका अल्ट्रासोनिक एटोमाइजर भी लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे डस्ट आने का चांस बहुत कम रहता है। यहाँ पे अगेन वी हैव अनदर पीपीएफ स्पेस, बट अभी हम लोग उसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं तब हम वो यूज़ में आता है। यश, यहाँ पे डेजिग्नेटेड ये स्टूडियो के लिए पर्टिकुलर कितना स्टाफ है आपके पास? यहाँ पे अराउंड 8 लोग हैं। एक आज डे ऑफ पे और 7 लोग अभी यहाँ पे हैं। ये हमारे मेन एप्लीकेटर हैं, हेड एप्लीकेटर बोलते हैं जैसे। ही मैनेजेस द। हाँ, ये मेरा पूरा पीपीएफ का काम संभालते हैं। राइट। इनका नाम है फौजिल एंड काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है। एप्लीकेशन आप देखो, कितना एक एक्सपीरियंस है उनको साल वाइज देखे? 8 साल का तो है। Wow. 8 साल है ना जी। 8 साल का एक्सपीरियंस दैट्स है। नाइस। ये हमारे ब्रांड न्यू पीपीएफ एप्लीकेटर है नाजिस, एंड इनका 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट काम बहुत जल्दी अच्छे से पिकअप किया हुआ है इन्होंने। एंड सारुल अभी न्यू ही आए हैं, इनको आके हमारे पास अराउंड 4-5 मंथ्स हुए हैं अभी। एंड वो भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर है, पहले फौजल के साथ ही काम कर चुके हैं, रेफरेंस में आए थे। राइट। वहाँ पे हमारा शैतान आदमी है शाहिद। एंड व्हाट ऑफ हिम? हाँ, यही शाहिद। Oh. ये सबसे मस्तीखोर है हमारा, मारपीट करता रहता है। मैं सीसीटीवी में जब देखता हूँ ये और नाज़िर आपस में मारपीट करते रहते हैं। हाउ डू यू हैंडल देम व्हेन दे फाइट? और नहीं, आपस में लड़ो मरो, मेरे को नहीं देखना, मेरा कंसर्न है बस काम अच्छा होना चाहिए। जो ये अभी कर रहा है ये परफेक्ट होना चाहिए। ये मेरा बोलते हैं ना हीरा है, मेरा राजा बेटा है ये मेरे पास है। मेरी शॉप ओपन होने के, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट मंथ में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अच्छा स्टाफ नहीं था। इसके आने के बाद से मेरी दुकान बोलते हैं ना रॉकेट हो गई। Lucky ये charm. जब से आया है मेरे पास, इसने सारा काम संभाल लिया, मेरे को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका नाम रुद्र है, उड़ीसा से है और बहुत प्यारा बंदा है, मतलब जेम एट हिज हार्ट। एंड सारा काम मतलब डिटेलिंग रिलेटेड, पॉलिशिंग। अब हमें बीच में ना स्ट्रगल होती थी पार्ट्स खोलने में। हम बाहर से मैकेनिक बुलाते थे, कभी कभार वो आते नहीं थे, आते थे कभी कभार गड़बड़ करते थे। मैंने इसको एक बार बोला, यार रुद्र ये सब काम अपन नहीं कर सकते। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के बंदे ने फुल फिटिंग सीखी, 2 और लोगों को सिखाई इसके साथ जो काम करे। अब सारे पार्ट्स, जो भी गाड़ी हमारे पास पीपीएफ पे आती है, पार्ट्स ओपनिंग, डिटेलिंग, पॉलिशिंग, फिटिंग के बाद सिरामिक, सब काम दिखता है। कुछ बचा नहीं है जो उसको नहीं आता। बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे लोग, डेफिनेटली सामने से इनिशिएटिव लेते हैं Exactly. डिफरेंट करने का अपने काम से थोड़ा भी। That's नहीं, good. इनिशिएटिव के मामले में तो देयर इज नो वन बेटर देन हिम। जो काम बोलता हूँ उससे 10 गुना बेटर ही करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं आप इन लोगों को सुबह में आके? सीसीटीवी से या बिकॉज हाँ, यू आर मोस्टली एट योर अदर स्टूडियो। स्टूडियो बिकॉज़ यहाँ पे ऑफिस नहीं है बैठने के लिए। आई डोंट अटेंड क्लाइंट्स हियर। यहाँ पे मेनली या तो डिलीवरी के लिए आता हूँ या फिर बीच में कुछ गाड़ी ड्रॉप करनी है या कुछ काम है। वेल कोऑर्डिनेटेड, सिर्फ कॉल से ही इतना अच्छे से काम सब मैनेज हो रहा हाँ, है। मेरे को ऑपरेशंस नहीं देखने पड़ते। दैट इज समथिंग दैट आई कंसीडर टू बी अ वेरी गुड रिलीफ फॉर मी।
बट अब धीरे धीरे करके हर एक सिस्टम जो है ऑटोमेट करना है। जैसे हर्ष भाई का है सेल्स ऑटोमेटेड है, वैसे धीरे धीरे करके वो भी ऑटोमेट करना है। अभी सेल्स का सारा बर्डन मेरे ऊपर ही है। ये थी आपने चालू करा है? ये थी हमने चालू करा। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा है? रिलीफ है बिकॉज केवाईसी एक तरह से अपने आप हो जाती है। लोग क्लाइंट से हम पूछते थे आपकी कौन सी गाड़ी है, क्या करवाना है, वो सब वो पूछ के हमें रेडी करके दे देता है कि दिस इज अ वेरी गुड लीड, हमें बस अब उसको कन्वर्ट करना है, प्राइसिंग बता दें। दूसरे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को ये ऑप्ट करना चाहिए सिस्टम? डेफिनेटली आई हैव रिकमेंडेड ये टू अ लॉट ऑफ और पार्टनर्स एंड काफ़ी लोगों ने अभी उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया अपने। सो यश, दिस कार इज डन। इस पे आपने क्या किया था? इस पे हमने ब्लैक पीपीएफ अप्लाई किया है। इट्स अ वाइट कलर्ड कार। इस पे पहले हमारा 10 इयर्स वारंटी वाला एजिस पीपीएफ था एक्सीड। ओके, इट्स अ वाइट कलर्ड कार। आई सी। इस पे एक्सीड पीपीएफ कराया, क्लाइंट ने अच्छे खासे पैसे खर्चे किए एंड देन ही वाज लाइक 1 साल बाद मज़ा नहीं आ रहा, मैं बोर हो गया हूँ, मेरे को ब्लैक करनी है गाड़ी, तो हमने इनकी कार ब्लैक। सो ही वाज सैटिस्फाइड विद योर वर्क, बट उनको सिर्फ डेफिनेटली तभी तो गाड़ी वापस आई ना अपने पास। इट्स जस्ट उनको वाइट से बोर हो गए थे, उनको चाहिए था ब्लैक, चाहिए ब्लैक माफिया लुक चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। लुक्स गुड। एंड देन दिस इज जस्ट राइट, मैंने बताया SPX के लिए। सेल्टॉस इज फाइनल। ये एक फनी स्टोरी है। क्लाइंट हमारे पास गाड़ी छोड़ के मालदीव चले गए एंड इज कमिंग बैक ऑन 10th of June। एंड दिस कार हैज बीन हियर सिंस? यहीं पे रहेगी। ये तो अभी परसों ही आई थी। वी जस्ट फाइनलाइज्ड द वर्क। अब ये यहीं पे खड़ी रहेगी 10-12 दिन तक। तो यू आर कंफर्टेबल, मतलब आप इतना बाहर पूरा पार्किंग स्पेस हमारा ही है, सो वी कीप यूजिंग दैट। पोर्शा एज आई टोल्ड यू कलर्ड पीपीएफ के लिए है एंड वी हैव अ स्कॉर्पियो एंड जो वो स्टोर पे मैंने आपको दिखाई, तो ये सब पीपीएफ के लिए अभी है काम। 10 दिन कोई अपनी गाड़ी छोड़े, वो भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट की बात है। शोरूम से ली थी डिलीवरी, घर पे पार्क करी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनकी फ्लाइट थी, नेक्स्ट डे आफ्टरनून में हमने पिकअप कर लिया। न्यू कस्टमर ही है या रिपीट कस्टमर है? फर्स्ट टाइम। ये पट्टी नहीं निकालनी है और ये निकाल देना। ये सब बस एक्सेसरी निकाल के ना वापस से स्टिक करके देनी है। ये निकाल के डिक्की में डालना। तो यश, अभी हमने आपकी यूजीसी की बात करी, तो हाउ हैज यूजीसी हेल्प यू ग्रो मार्केटिंग बेसिस पर अगर हम बात करें तो? डेफिनेटली इट पुट्स अ फेस टू योर ब्रांड, योर शॉप। कस्टमर जब स्टोर पे आते हैं वो देखते हैं कि हाँ दिस इज द गाय हु वाज इन दैट यूजीसी, इन्होंने गाड़ी के बारे में बात किया, वो एक एक्सपर्ट का फेस बन जाता है आपका। एंड क्लाइंट भी आते हैं, सर आपको वीडियो में देखा, आपसे बात करनी है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो है, बेटर है, ट्रस्ट बेटर हो गया है लोगों के साथ। जस्ट गाड़ी के शॉट्स भी हम डालते हैं बट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना एक यूजीसी का होता है। अग्रीड। तो ये जब आपने यूजीसी जर्नी स्टार्ट करी थी, वो स्टार्टिंग से आपके लिए इजी थी या फिर आपने थोड़ा चैलेंजेस फेस किया था? मेरे पास बिजनेस में आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड कंटेंट, फनी कंटेंट भी बनाते थे, तो कैमरा के साथ कंफर्ट तो था, बट वो टिकट साइज अलग था, ये टिकट साइज अलग है। यहाँ पे एक अलग लेवल का प्रोफेशनलिज्म कैमरा के सामने चाहिए होता है, तो हाँ अडाप्ट करना पड़ा, बट उतना चैलेंजिंग नहीं, रिलेटिवली। तो अभी आप 10 to 12 एटलीस्ट सबके यूजीसी तो करना, यू शुड स्टार्ट। डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। अभी आपने काम दे दिया तो मेरे को भूख लग गई, थोड़ा खाना खाने चलते हैं। 3-3:30 बज गए, खाना खाने। लेट्स गो। वेयर आर वी गोइंग? वी गो अचीजा, यहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। पाव भाजी प्रेफर करते हैं एक्चुअली। हमारे RM साहब जब आते हैं ना, विशाल भाई, उनको बहुत पसंद है। सो पूरे दिन के हेक्टिक केओस के बाद अब टाइम है एक फन सेगमेंट का। हमने आज एक क्रिकेट टर्फ मैच बुक किया है हमारे डिटेलर्स के लिए एंड वी आर प्लेइंग इट अगेंस्ट RP कस्टम मुंबई डिटेलर्स। सो फ्रॉम कासपास हेड ऑफिस टीम वी हैव विशाल, Maharashtra's RM and training officer Yash Bharti with us. हर बॉल को दे तमाचा, दे चौका, दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का, चौका, दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का, चौका, दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का, चौका, दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। तो यश, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस क्या बोलता है? पक्का जीतेंगे। पक्का 100%? यश भाई पीछे क्वेश्चन मार्क है ना? भाई यश, you were नवी मुंबई टीम कैप्टन। हार के कैसा लग रहा है आपको? कोई बात नहीं, चैंपियनशिप में तो जीत गए, ये तो बच्चों का खेल है। इंशाल्लाह वॉइस प्लेट वेल। कैसा लग रहा है तू? अच्छा लग रहा है। अब इतना घटिया कोई कैसे खेल सकता है? हम यही सोच में रह गए। कैसा लगा आपको खेल के पार्थ? बहुत ही मजा आया। जीत के? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आया। अभी फुटबॉल खेलने इन लोग को बहुत जिद कर रहे हैं,
यस विशाल, आरएम है, आप महाराष्ट्र के, आप यहाँ हैं, कैसा लगा आपको जीत के? देखो मैं हारा भी हूँ, मैं जीता भी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं बट अल्टीमेटली मैं ही जीता हूँ। now we are done with the match. It was too much fun. We had a lot of chaos, a lot of fun, good happy moments. Now let's go ask Yash how he felt about it. Yash, कैसा लगा मैच खेल के? How was it? बहुत बढ़िया, बस जीत जाते तो और अच्छा लगता। Had a lot of fun. Yes. So Yash, few important questions that I would like to ask you is that one advice that you would like to give any person who's interested in car detailing business or is a car enthusiast who is looking forward to get into this business, whether they should go solo, opt for franchisee, whatever it is. As per your experience. दो चीज़ें उन्हें कंसिडर करनी चाहिए। दे आर गुड पीपल पर्सन, क्योंकि पूरा बिजनेस रिवॉल्व करता है स्टाफ के अराउंड। सेकेंडली, प्रोडक्ट्स वो बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, एंड क्वालिटी वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू कार डिटेलिंग, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट्स है कार डिटेलिंग रिलेटेड, आप उसको सेल कर पाओगे, अपसेल कर पाओगे, वो आपके स्किल्स में होना चाहिए। एंड यू नीड टू बी एबल टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी टू एंश्योर आपको रेफरल बिजनेस मिले, रिपीट क्लाइंट्स मिले। एंड सेकेंड, अगेन स्टाफ हायरिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, जिसमें इनिशियली हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है। अभी भी जो फ्रेंचाइजीज न्यू हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू नीड टू हैव अ गुड क्वालिटी, कि आप लोगों से अच्छे से बात करके उनको अपने साथ कैरी कर सको। And this is for somebody who's interested. And Right. what about somebody who's already in this business but maybe struggling a bit or are stuck somewhere? What would you like to tell them? ऑलरेडी नदी में घुल गए हो तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। यू विल हैव टू फिगर इट आउट। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या चीज़ नहीं वर्क कर रहा है। इवन एट दिस स्टेज मैं नहीं मानूंगा कि हम बहुत अच्छी जगह पे है। वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, एंड मैं खुद आइडेंटिफाई करता हूँ कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत गाइडेंस आप दे देते हो कि यूजीसी कम जा रहा है, तो ये सब चीज़ों पे वर्क करना है। एंड आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट क्या क्या चीज़ों पे वर्क करना है। सिमिलरली दे ऑल्सो नीड टू मेक अ लिस्ट कि कहाँ लैक हो रहा है। कि अगर आपके ही एरिया में, चलो अगर एरिया में डिमांड ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, एक टाइम समझ सकते हैं कि यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन। बट अगर आपके एरिया में कोई दूसरा बंदा आपसे अच्छा कर रहा है, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग दैट ही इज एबल टू डू। तो यू नीड टू फिगर आउट वो बेटर क्या कर रहा है एंड हाउ यू कैन डू इट इवन बेटर, तब जाके आपका धंधा आगे बढ़ेगा। Focus is important. Yes, focus and identification of problems and then action to solve the problems. Action में तो खैर मैं भी काफ़ी पीछे हूँ, but धीरे धीरे getting Getting there, there. baby steps, Yeah. हो जाएगा। So Yash, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं baby steps, आपका future vision क्या है? Where do you see yourself within next 5 years per se? Right. I want to establish myself as the go-to guy for PPF or all things car in Navi Mumbai in the coming 5 years. First 3 years का तो focus strictly would be anything related to paint protection, whatever the future holds. Maybe it's PPF, spray-on PPF, colored PPF, whatever it is. I want to be the go-to guy. In the future, then it should also involve denting and painting and all those stuff. धीरे धीरे करके we want to expand into that as well. Is another store expansion on your vision list right now? दो तो कर लिए हैं. 2 कर लिए हैं, another नहीं, more है, but again baby steps. पहले I need to make sure these 2 stores are doing justice. इतना एरिया है, इतना स्पेस है मेरे पास. I need to make sure कि ऐसा टाइम आए कि अगला पूरा महीना बुकड है. Then only I'll be now thinking of another space. But definitely it's on the cards, क्योंकि ये बिजनेस है एरिया कैप्चर करने का. जितने जल्दी आपने एरिया कैप्चर कर लिया, एक स्पेस कैप्चर कर लिया, उतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. Right. So Yash, thank you so much, Yash. It was amazing speaking to you, spending the whole day with you. Had a lot of fun, got to learn things. Thank you so much. thank you. Bye bye.